اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھیں، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔
آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے میرے بھائیوں۔ عرب جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں، یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگو اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دیے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت نے یہ کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ زنا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا
تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی وہ سب کو، ادھر آؤ، سب آتے، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے. یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا، سب آتے. 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے، 10 گئے تو 10 آئیں گے، 6 گئے تو 6. جتنے لوگ اس عورت سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھال دیتی، سب بیٹھتے. وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم نے میرے ساتھ زنا کیا، میرا جسم حاصل کیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب عورت اس بچے کو اٹھاتی. غور کرو، یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے. کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو. وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی. وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے، یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی. یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا. ہمارے سماج میں یہ جانوریت ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں، لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، آدمی نہیں. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا. اس کی گود میں ڈال دیا. آؤ تمہیں نکاح کا ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں جو عرب کی دھرتی پر تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے یہ جہالت عرب کی سرزمین پر تھی، اور جس کی طرف وید نے اشارہ کیا ہے. جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، بھائی جس کو جانا اٹھ کے چلا جاؤ، بیچ میں اٹھو گے تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا. وہ دیکھیے پہلے آگے بیٹھ جائیں گے اور بعد میں پھر بھاگنے لگیں گے. پتہ نہیں، ہم تو اتنی آسان اردو بول رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. ہم کوئی حیدرآباد اور بمبئی میں تقریر تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسپیڈ میں ہو اور وہ سب سمجھنے والے ہیں. ہم معلوم ہے 20 سال سے ہم آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون سے جملے استعمال کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے. ہم بہت آسان، اور اسی لیے آپ بھی ہمیں بلاتے ہیں، ورنہ یو پی میں تو ہزاروں مولوی بھرے پڑے ہیں. آپ ہم ہی کو لائک کر رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں، پھر بھی بھاگ رہے ہیں. کبھی کبھی جب 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جب جاتا ہے تو ہم کو اور غصہ آتا ہے، تو آیا کیوں تھا؟ اور بیچ میں جب 80 سال کا 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جا رہا تو ابو جا کے کیا کرے گا؟ ابو چاچا جی چاچی کے کام کے بھی نہیں رہے، لیکن اٹھ کے جا رہے ہیں. اب جا کے کریں گے کیا وہاں جا کے؟ گھر پہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو سنیے ایک اور گھناؤنا طریقہ عرب کے اندر شادی کا. یہ تو تھی 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ ایک عورت کے پاس جاتے. کچھ عورتیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں. تیسرا نکاح یہ بڑا گھناؤنا ہے. کچھ عورتیں عرب کے اندر اپنے گھروں کے چھت پر ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. یہ بھی بخاری کے اندر ہے. ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آنا چاہے چلا جائے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پورے سال میں ان کے پاس بہت سے مرد چلے جاتے. کیا ہوا، کوئی کھو گیا؟ ہاں وہ تو معلوم ہے. اس کے اوپر کھڑا کریے تو دیکھیے تو بھیا یہ کس کی بچی ہے؟ ارے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہو، ہم کیا جانے کیا بول رہے ہیں.
आओ भाई इधर आओ कैमरे के सामने। देखिए भाई ये किसकी बच्ची है, जिसकी हो ले जाओ, नहीं तो हम यूपी ले जाएंगे। चलोगी हमारे साथ, चलोगी? वाजिबा खातून है भाई इसका नाम, वाजिबा खातून, जिसकी हो, और बाप का नाम आलमगीर। वाजिबा खातून, बाप का नाम आलमगीर। हाँ चल, कांति पार है वो, पहुंच जाएगी। ठीक है चलो, ठीक है, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। बच्चियों को माएँ संभालती हैं। वाजिबा खातून, बाবার নাম আলমগীর। মেয়েটা হারিয়ে গেছে, স্টেজ আছে, যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাঁদতে পার। बच्चियों को माँ संभालती है। बताओ माँ कितनी निडर होगी जो परवाह ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। बाजार हज़ार में घूमो, देखो तो मौलाना जर्जीज की तकरीर तो समझ में आ नहीं रही होगी, तो हो सकता है जलेबी जलेबी खरीद रही हो, चूड़ी उड़ी खरीद रही हो मार्केट में। तो हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडियों का मतलब होता था कि जो आना चाहे आ जाए। पूरे साल में उनके पास पता नहीं कितने मर्द चले जाते थे, लेकिन जो भी जाता वो सबका नाम नोट करती और उसको मालूम होता कि हमारे पास इतने मर्द आ चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता, उसके पेट से जब हमल बच्चे की शक्ल में बाहर आता, तो वो औरत सबको बुलाती। उसमें कोई गिनती नहीं होती है, 100 भी हो सकते हैं। मिल गई? सबको बुलाती। जितने भी लोग उस औरत के पास आए और जिना किया, वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती। फिर खाने काबा से कयाफा शनास आता। कयाफा शनास नहीं समझेंगे आप, आओ मैं आपको समझाऊं। तू बहुत नौटंकी कर रहा है यार, बहुत ड्रामा कर रहा है, लगता है दुनिया में तेरा ही चैनल चल रहा है और किसी का है ही नहीं। हम लोग सब बेवकूफ बने बैठे हैं, कुत्ते की दुम की तरफ टेढ़ी हो गए, बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकते। कब से बोल रहा हूं मैं, खामोश हो जाओ, सामने बैठ रहे। कयाफा शनास को बुलाया जाता, कयाफा शनास खाने काबा से। आपके यहाँ उसको क्या बोलते होंगे हमें नहीं मालूम। वो उन सब लोगों को देखेगा, 100 150 200 जो आदमी हैं उनकी शक्ल देखेगा, और फिर बच्चे की शक्ल देखेगा। मतलब ये बच्चा सबसे ज्यादा किसकी शक्ल से मिल रहा है। फिर वही कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में से, जितने उस औरत से मिले हैं, जितने लोग मिले हैं, उनसे मिलाकर देखकर जिसकी गोद में रख देता था इस बच्चे को, ये बच्चा उसका बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती, और बकिया लोग मौज मस्ती में निकल जाते। ये शादी का तीसरा तरीका था। इथकलोगत पराय जनेशु खरगर मिली। जानवरियत जब भरी होगी, आज भी इतनी जानवरियत नहीं है। शराब बता दी। जुए का हाल तो ये था कि हम कितने भी बिगड़े हुए हों, ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे पर और स्टेशन पर 100 रुपए की 200 रुपए की लॉटरी खरीद सकते हैं। जुए में 5-6-10 हजार रुपए हार सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हम जुआ खेल सकते हैं, फला टीम जीतेगी इतना रुपया, नहीं तो हम इतना देंगे, ये प्लेयर इतना रन बनाएगा, इतने विकेट लेगा, उस पर जुआ। ये एक है हमारे यहां गंभीर समस्या। लेकिन चाहे कितने बड़े जुआरी हों, लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया है कि जुआ खेलते वक्त किसी ने जुए में रकम हार जाने के बाद अपना घर, और घर भी हार जाने के बाद अपनी बीवी, और बीवी को भी हार जाने के बाद अपनी बेटी भी जुए में लगा दी हो। हमने आज तक ये नहीं सुना। अरब के अंदर जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। हितकलोगत प्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्रश्यति। जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी,
धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा। महम्मद आएंगे, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है? एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे? इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया, तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहां सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बैक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को
मना सकते हैं, लेकिन जरजीत साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जरजीत साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया है, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ। इस जलसे में भी आई होंगी, फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो। एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था अल्लाह ने, काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज जा रही। अब वक्त है इनका मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते सवाल करेंगे, स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है
चुप। कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा, भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा, नहीं तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा, है कैसे? कहा, मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा, रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है, शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है, पोसता है, और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं, और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो, उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है, तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी, बहन की नजर से देखा। जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है? इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली, तो याद रखना, हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूम, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे, तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया, और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले, और बारेलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सके कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है,
मौलाना जर्जीस तो शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी, उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा हो। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय संता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूं, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे। कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं नहीं ठीक है। उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। हाय हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा, अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाजत दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो।
آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے؟ ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر، دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے۔ ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا ہے، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کر نہ 500 نہیں 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، تجھے خوشیاں کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن۔ لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں۔ ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے، معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا۔ ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا۔ یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے۔ مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہا ہے نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا۔ یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیشی رہنا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے، انٹرنیشنل اسٹائل۔ اور جو یہ کہتا ہے کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ، کیا کرے گا تو میرا کر لے۔ لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے ہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا، لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے۔ اس چیز کو ختم کریے سماج سے۔ اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا۔ دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور اپنے
लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा, लंगड़ा, लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीजें हमें अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक के जमाने में तो एक एक चीज पर नजर रखी जाती थी, एक एक चीज पर। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहां देखता हूं मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नजर में आ गया, मेरी आंखों ने फोटो खींच लिया उसका। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्न हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी चारपाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्न हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्न हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुकाला कर लेती, अपनी चारपाई की कुचुर मुड़वा लेती, उसकी आवाजें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया, और पता लगाने लगे कि नज़र इब्न हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्न हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्न हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नजर, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहां एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नज़र इब्न हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हजरत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्न हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की, और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्न हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हजरत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्न हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नजर, नहीं मैं नहीं जानती। हजरत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हजरत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूं। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूं। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूं और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं, और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए
अमीरुल मोमिनीन ने कहा आए नजर, पगड़ी उतारो। नजर इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फे जो होती ना, कभी देखा, कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं है। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा, लनस्फ़अन बिन्नासिया, कयामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ जाएगा नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा कयामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ मेरी आंखें फोटो खींच चुकी हैं, अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हो, किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नजर इब्न हारिस के जब बाल देखे तो कहा अमीरुल मोमिनीन ने, आए नजर इब्न हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नजर इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बारबर को, एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया, और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नजर इब्न हारिस ने कहा अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अब अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल कटने के बाद, अमामा बांधने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां की लड़कियां फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी फितने से। नजर इब्न हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी दूसरे दिन,
मुखिया आ जाएंगे, सरपंच सब आ जाएं, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेके भागा, हाँ क्या हो, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की ज़िंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में 1 रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर 1 रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो 1 रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो 1 रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला 1 ही रकात उसने पढ़ी, यानी 1 मिल गई थी, 1 पढ़ ली और 1 बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नज़र रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में, दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सज़ा दूंगा। CID ने कहा क्या सज़ा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका 1 हाथ काटेंगे और इसका 1 पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। 1 वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी 1 रकात। सिर्फ जुम्मे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका 1 हाथ काट दूंगा और 1 पैर काट दूंगा। ज़रा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहां कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का।